Hello and welcome to next particular video on physics. Now in this particular topic we are going to understand relations and proof based on simple refractive index. Now what we understand by this concept? For that we'll first begin with relation, trying to understand relation. Now what is relation? See children, we know what is refractive index. अब तक हमने refractive index पढ़ा है. So if I simply ask you what is refractive index of second medium with respect to first medium, how are you going to write that? So for refractive index, of course, we are going to take the symbol called as nu, and यहाँ पे it is, since it is with respect to first medium with respect to first, तो second medium हम लोग left side में लिखेंगे, first medium हम लोग right side में लिखेंगे. तो this is how we are going to write, right? Refractive index of second medium with respect to first medium is equals to V1 upon V2. Now this is, we already know since we have learned numericals. Okay, exact, let's say this is equation number 1. नाउ एग्जैक्ट ऑपोजिट अगर इसका पूछा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम पूछा, तो कैसे लिखूंगा? नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए वंस अगेन विल राइट न्यू. फर्स्ट मीडियम पहले आया तो लेफ्ट साइड में 1 लिखूंगा, विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम तो राइट साइड में 2 लिखूंगा. सो विल राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम एज V2 अपॉन V1. ओके, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ चिल्ड्रन, दिस आर एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ ईच अदर. वन इज V1 अपॉन V2 एंड सेकेंड इज V2 अपॉन V1, राइट? तो मुझे इन दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ना कुछ रिलेशन चाहिए. कैन आई रिलेट और कैन आई लिंक दिस टू? फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज, लेट्स से इफ आई मल्टीप्लाई दिस टू इक्वेशन, फर्स्ट और सेकेंड को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, सो लेट्स से व्हाट आई गेट, व्हेन आई से आई एम मल्टीप्लाइंग दिस टू इक्वेशन मीन्स लेफ्ट साइड को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करने का एंड राइट को राइट से. मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम multiply by refractive index of first medium with respect to second medium will be equal to, right side को right से multiply करेंगे, so will be equal to V1 upon V2 into V2 upon V1. Fine, clear this step. Now after this what we do is, if you observe carefully on the right side, V1 ऊपर भी है नीचे भी है, V2 ऊपर भी नीचे भी है, that means simply we can cancel the terms V1 V1 V2 V2. So after cancellation we get refractive index of second medium with respect to first into refractive index of first medium with respect to second is equals to, cancel होने के बाद कुछ भी नहीं बचा, it is 1, सबका मालिक 1. So what we get is, if I multiply two refractive index with each others, that is 1 with respect to 2 and 2 with respect to 1, we get answer as 1. Now this is, I'm not connecting it, so what I do is, let's say यहाँ पे दोनों भी टर्म मल्टीप्लाई में एक को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, so what I get, उधर गया तो डिवाइड होएगा, so we get refractive index of second medium with respect to first as 1 upon refractive index of first medium with respect to second, and this is the relation between the refractive index of two mediums when compared with each other. Okay. Now when I say these are relation between refractive index, what we exactly mean by that? मतलब see, refractive index of second medium with respect to first medium क्या आया? Reciprocal of या 1 upon refractive index of first with respect to second. मतलब अगर समझो refractive index of first medium with respect to second medium 2 होता, तो refractive index of second medium with respect to first medium क्या होगा? Simple, refractive index of first medium with respect to second medium 2 है, तो इधर डिनोमिनेटर में 2 सब्सटीट्यूट करो, तो what will get? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वी विल गेट 1 अपॉन 2. ओके, 1 अपॉन 2 कितना होगा? 0.5. मतलब इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड 2 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट विल बी 1 upon 2, that is 0.5. So this is a simple relation we are going to use sometime in numerical type of problem or for some proof. Okay, so this was the first concept of this particular topic. Now the next and a very important concept is proof. We are supposed to prove I is equals to E. Now children, this is a very famous and most interesting and important question or the concept with respect to board exam point of view. तो हमें कुछ तो proof करना है, means some we are trying to enter something into geometry. Okay, now what is this I is equals to E? For that let's try to read the question. The question will be, if the angle of incidence and the angle of emergence of a light falling on a glass slab are I and E, then prove that I is equals to E. Okay, तो ऐसा कुछ तो prove करना है. Now to connect this, we have to just understand or recall the concept of refraction of light. Remember this particular glass slab experiment? Okay, when an incident ray of light on a glass slab, the ray of light will bend, and second refraction में when it is coming outside, it will once again bend.
व्हाट आई मीन टू से इज, यहाँ पे हम लोग ने क्या क्या सीखा था, AO इज द इंसिडेंट रे जो हम लोग भेज रहे हैं, ओके, PQRS इज अ ग्लास स्लैब, AO इज अ इंसिडेंट रे, वंस इट इज एंटरिंग इनटू ग्लास स्लैब, मतलब वो बाहर से अंदर जा रहा है, इट इज एक्चुअली गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. सो OB इज अ refracted ray, fine, OB is a refracted ray. And once again when a light is coming outside, matlab when it is coming outside means what, it is coming actually from denser to rarer medium, so it will bend away from the normal. So BC, just observe this BC in the diagram, it is the emergent ray. So we have got incident ray, refracted ray and emergent ray, of course. Now apart from this three ray, there are also three angles if you observe children. One is I, one is R and one is E. So observe this, I is the angle of incidence, I is called angle of incidence. Now I is the angle made by incident ray with normal. देखो वहाँ पे डायग्राम में what is incident ray, AO, नॉर्मल दिख रहा है, तो जब इंसिडेंट रे नॉर्मल से एंगल बनाएगा उस एंगल को बोलेंगे हम लोग इंसिडेंट रे. दिस इज सिंपली हमने कितने एंगल से लाइट को भेजा. नेक्स्ट इज R, R is angle of refraction. So R is the angle made by refracted ray with normal. Observe very carefully, refracted ray किधर है, normal किधर है, R वहाँ पे दिख रहा है, ठीक है. In this case अगर ध्यान से देखें, I is greater than R, बराबर, since light is bending angle कम होगा. सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन जहाँ पे हो रहा है, मतलब लाइट जब बाहर आ रहा है, किधर आ रहा है देखो, SR से बाहर आ रहा है, ओके. सो वहाँ पे थर्ड एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एमरजेंस. तो एंगल ऑफ एमरजेंस इज एंगल मेड बाय एमरजेंट रे विद नॉर्मल. सो हमको इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन में प्रूफ क्या करने का है, आई विल बी इक्वल टू ई. मतलब क्या, जिस एंगल से मैं लाइट को भेजूंगा दैट इज इंसिडेंट रे को, देखो उतने ही एंगल से लाइट वापस बाहर भी निकलेगी, दैट इज एमरजेंस भी उतने ही एंगल से होगा, जस्ट उसका जगह या स्पेस शिफ्ट होगा. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूफ ओवर हियर, ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद प्रूफ नाउ. For proof what we do is, let's say this was the same diagram. Now children, in order to prove I is equals to E, we have to make use of a Snell's law. Do you remember what was Snell's law? Snell's law was refractive index is the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction. Okay, wait, I'll just recall it and make it very clear to you. फर्स्ट टाइम इधर रिफ्रैक्शन किधर हो रहा है वो ऑब्जर्व करो. जब लाइट को हम भेज रहे इंसिडेंट रे, किधर हो रहा है, PQ पे. जैसे लाइट PQ के उस तरफ जाएगी लाइट विल बेंड, बराबर. एंड हमको दो एंगल मिला है, एक I और एक R. तो एट इंटरफेस PQ, सबसे पहले PQ पे हम लोग स्नेल्स लॉ यूज करेंगे. एंड स्नेल्स लॉ क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, बराबर. हम लोग एयर से लाइट कहाँ से कहाँ भेज रहे, एयर से ग्लास में. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन बाय yes sin I upon sin R. So this was the Snell's law. This is Snell's law, equation number 1. Now एक बार जब लाइट को हमने भेजा, that is PQ पे हम लोग ने अप्लाई किया Snell's law. अब सेकेंड टाइम जहाँ से लाइट बाहर निकलेगा, मतलब सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन होगा, वहाँ पे वापस अप्लाई करने का है. मतलब कहाँ पे लाइट इज emerging और coming out from where, it is coming out from the interface. Observe नीचे SR. So at interface SR क्या होगा. Now ऑब्जर्व करो, ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर है, बराबर. एयर से ग्लास में लाइट गया तो नीचे क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, बराबर. ग्लास में से लाइट वापस बाहर आ रहा है तो वहां पे क्या मिलेगा, इट विल बी ऑन राइट साइड, इट विल बी, ऑब्जर्व व्हाट आर द टू एंगल. सी इफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इट विल बी सेम, बराबर. इफ यू कैन ऑब्जर्व रिफ्रैक्टेड रे देयर इज अ जेड फॉर्मेशन, मतलब ऑल्टरनेट एंगल. तो अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे तो इधर भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा. सो ऑन राइट साइड वी आर गोइंग टू राइट इट विल बी साइन R अपॉन साइन E, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. नाउ चिल्ड्रन आई वांट यू टू मेक इट वेरी क्लियर. ये दोनों भी इक्वेशन समझा क्या. फर्स्ट वाज refractive index of glass with respect to air is sin I upon sin R. Second is refractive index of air with respect to glass is sin R upon sin E. Okay. Now if you observe both of this, refractive index of glass with respect to air है और second refractive index of air with respect to glass है, मतलब दोनों exactly एक दूसरे का उल्टा है, right? So ऐसा अगर कुछ होता है तो याद है, just now we have proved it. What was the relation? Refractive index of second medium with respect to first medium is equals to reciprocal of या फिर 1 upon refractive index of
फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। यहाँ पे सिंपल है, फर्स्ट मीडियम क्या है, एयर, हम लोग लाइट एयर से ग्लास में भेज रहे हैं। सेकेंड मीडियम क्या है, ग्लास, तो इसके नीचे 1 के जगह पे एयर लिखते एंड 2 के जगह पे ग्लास लिखते, तो क्या मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। फाइन, नाउ दिस इज वी गॉट इक्वेशन, हम लोग को दोनों भी एक इक्वेशन मिला, मतलब जो दोनों को फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को लिंक कर रहा है या कनेक्ट कर रहा है। अब ये सिंपल वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। डू वी नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर का वैल्यू क्या है, ऑब्जर्व करो इक्वेशन नंबर 1 पता है क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। और लेफ्ट साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर के जगह पे वी विल सब्स्टिट्यूट साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ऑन राइट साइड 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास है, उसका वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में है, क्या है वो, साइन आर अपॉन साइन ई। सो वी गेट साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन आर अपॉन साइन ई। सिंस इट इज 1 अपॉन है बच्चे लोग, तो उसका रेसिप्रोकल लेने का एग्जैक्ट उल्टा होएगा, तो क्या मिलेगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू साइन ई अपॉन साइन आर। 1 अपॉन के नीचे था तो उल्टा लिखने का। ओके, नाउ दोनों का डिनोमिनेटर, इस इक्वेशन में दोनों का डिनोमिनेटर देखो, साइन आर सेम है, तो दैट विल गेट कैंसल, तो वी हैव ओनली लेफ्ट विद न्यूमरेटर, दैट इज साइन आई इज इक्वल टू साइन ई। नाउ दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इधर भी साइन है लेफ्ट में, राइट में भी साइन है, तो क्या है, साइन विल गेट कैंसल एंड वी विल बी गेटिंग आई इज इक्वल्स टू ई, एंड दिस इज व्हाट वी वर सपोज टू प्रूव। ओके, इफ यू रिमेंबर, प्रूव दैट आई इज इक्वल्स टू ई। सो इट्स वेरी सिंपल, कुछ हार्ड नहीं है, सिंपली हम लोग ने स्नेल्स लॉ यूज किया। ओके, 2 बार, क्यों 2 बार, एक जहाँ पे लाइट हम लोग भेज रहे, एंटर कर रहे हैं, एंड सेकेंड व्हेन द लाइट इज कमिंग आउट, एंड इन ऑर्डर टू यूज स्नेल्स लॉ आल्सो वी हैव यूज्ड द सेम रिलेशन व्हिच वी हैव लर्नड इन दिस video in the first part. Okay, so this is how, and a very important question ends, prove that I is equals to E. Thank you.